2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ। ਪਾਵਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਲਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਸੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 2 ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਸੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 1 ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ px ਤੇ qx ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। px ਆਉਣਾ ਸੀ -3 ਤੇ qx 2। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਥੰਬਨੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੰਬਨੇਲ ਦੁਬਾਰਾ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ px ਤੇ qx ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਐਟ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲੇ ਕੀ ਹੈ ਸਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 3 ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਆਏਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਸੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ 1 - x² ਇੰਟੂ d² y dx² प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ये अपनी जो है गिवन इक्वेशन है, इसमें आप नंबर 1 कह देंगे। तो इतने देखो आप जो स्टैप्स बनाए सी जिस दे विच पहला स्टैप ही मैं तुहानूं कहा सीगा कि जो इक्वेशन अपने कोल होएगी गिवन इक्वेशन आप टेक करना है। तो सैकेंड स्टैप दे विच आपां की कीता सी कंपेयर कीता सी गिवन इक्वेशन नूं, कंपेयर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इत्थे आपां जदों इसनूं स्टैंडर्ड फॉर्म नाल कंपेयर करांगे, इत्थे मैं लिख देना कंपेयर इट विद d² y dx² प्लस px dy by dx प्लस qx इंटू y इज इक्वल टू 0। देखो इत्थे ना एक प्रॉब्लम है, वो की प्रॉब्लम है कि आप जो कंपेयर करते हैं तो अपन px ਤੇ qx मिलता है, बट जिस दे नाल आप कंपेयर कर रहे हैं उस दे विच डबल डेरिवेटिव जिहड़ा d² y dx² है उसका कोफिशिएंट 1 है स्टैंडर्ड फॉर्म च। बट इत्थे की है d² y dx² दे नाल 1 - x² है। ठीक है ना, तो मतलब आप इसनूं कंपेयर नहीं कर सकते जिन्ने तक इत्थे की है डिफरेंशियल इक्वेशन दे ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੇਰੀਏਬਲ 1 - x², ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ d² y dx² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿ d² y dx² ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ 1 ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿੰਪਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਵਾਈਡ both sides with 1 - x²। ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1 - x² ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ।
तो जो डिवाइड करांगे तो अपने कोल इत्थे की बचेगा 1 माइनस एक्स स्केयर बाय 1 माइनस एक्स स्केयर, ये कटिया जाएगा, यानी कि डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर अगे रह जाएगा। इत्थे कोफिशिएंट इसका 1 बन जाएगा ना, क्योंकि 1 माइनस एक्स स्केयर 1 माइनस एक्स स्केयर नाल डिवाइड करांगे तो 1 बचेगा। ठीक है, फिर उस तो बाद प्लस 2 ਨੂੰ भी डिवाइड करना पेगा 1 माइनस एक्स स्केयर नाल। ठीक है, नाल मल्टीप्लाई च वाई तो हैगा ही है इज इक्वल टू 0। हुण 0 के बटे च 1 माइनस एक्स स्केयर नाल डिवाइड करो चाहे ना करो, जरूरी नहीं है, वैसे डिवाइड करांगे तो 0 का तो 0 ही रहेगा। ठीक है, हाँ जी, तो हुण आप इसनूं कंपेयर करांगे, कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड फॉर्म की सी डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर प्लस पी एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 0। हुण देखो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर दे इत्थे कोफिशिएंट 1 है, इत्थे भी कोफिशिएंट 1 है। डी वाई बाय डी एक्स दे नाल पी एक्स है, इत्थे डी वाई बाय डी एक्स नहीं है, इस करके पी एक्स अपना की आ जाएगा 0 आ जाएगा, सिंपल जी गल है। ठीक है, फिर उस तो बाद वाई है, इत्थे भी वाई है, वाई का कोफिशिएंट की है क्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो अपना की है कोफिशिएंट क्यू ऑफ एक्स ही तो आप फाइंड करना होता है कि क्यू ऑफ एक्स जो फंक्शन है वो की है ना। तो क्यू ऑफ एक्स अपना इत्थे की आएगा जो कंपेयर करांगे, इत्थे वाई दे नाल क्यू ऑफ एक्स है, इत्थे वाई दे नाल की है 2 बाय 1 माइनस एक्स स्केयर है, तो क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू आएगी 2 बाय 1 माइनस एक्स स्केयर, है ना। हुण अपना थर्ड स्टैप की हुंदा सी कंपेयर करन तो बाद फाइंड पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स। पी ऑफ एक्स ते क्यू ऑफ एक्स आपां फाइंड कर चुके हैं। हुण नंबर 4 स्टैप आपां की करना है, चैक करना है एट एक्स इज इक्वल टू 0 कि पी एक्स एंड क्यू एक्स एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं। ठीक है, चैक करना है कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो जो आप इस इन्हों चैक करांगे एट एक्स इज इक्वल टू 0, तो पी ऑफ एक्स के 0 पुट करिए, एक्स की जगह पर 0 रखा तो ये तो फंक्शन है ही 0, मतलब 0 भर दिए तो ये फिर भी 0 ही रहेगा। तो क्यू ऑफ एक्स की गल करिए, एक्स में जेकर 0 पुट करिए 2 बाय 1 माइनस 0 स्केयर इज इक्वल टू 2 बाय 1 इज इक्वल टू 2। इसका मतलब की है कि जेकर आप क्यू ऑफ एक्स एक्स में 0 पुट करिए तो 2 आता है जोड़ा की है एग्जिस्ट करता है, एक एग्जिस्टिंग नंबर है 2। ठीक है, इसका मतलब पी एक्स क्यू एक्स बोथ आर एग्जिस्ट। आप इतने लिख देंगे पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स बोथ आर एग्जिस्ट। ठीक है, दोनों ही की ने एग्जिस्ट कर रहे हैं। जेकर दोनों एग्जिस्ट करते हैं तो मैं तुम्हें 5th स्टैप के दसिया सी, जेकर एग्जिस्ट करते हैं तो की होणगे एन ऑर्डिनरी पॉइंट। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 जेकर पी ऑफ एक्स ते क्यू ऑफ एक्स एग्जिस्ट करते हैं तो आप इत्थे लिखांगे देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 0 इज एन ऑर्डिनरी नंबर पॉइंट। ठीक है, तो आप की कहांगे कि जो एक्स इज इक्वल टू 0 है एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। ओके, नाल आप भी लिखांगे ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1। ठीक है, आप जो गिवन की सी डिफरेंशियल इक्वेशन जो अपन जो स्टेटमेंट के गिवन सी उस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एक्स इज इक्वल टू 0 जो पॉइंट है वो की है एक ऑर्डिनरी पॉइंट है। हाँ जी, तो उस तो बाद मैं तुम्हें यह भी दसा सी कि जेकर पॉइंट ऑर्डिनरी होएगा तो आप एक सोल्यूशन लैट करना होएगा, लैट सोल्यूशन। ठीक है, तो आप इतने लैट करते हैं सोल्यूशन मैं नैक्सट स्लाइड के उपर लैट करता हाँ क्योंकि फिर दिक्कत नहीं आएगी। लैट सोल्यूशन ऑफ 1b y इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 तो इनफिनिटी ए एन एक्स की पावर n। ठीक है, यही सोल्यूशन मैं तुम्हें लिखवाया सी ना, जेकर ऑर्डिनरी पॉइंट होए तो आप ये सोल्यूशन लैट करते हैं। इसनों आप नंबर 2 कह देंगे हाँ। ठीक है, हम इसनों नंबर 2 क्या है तो आपां की चाहिए है। एक गल होर देखो, जो आप ना पार्ट 1 के क्वेश्चन कराया सी उस दे विच आपां डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर ते डी वाई बाय डी एक्स निकालिया सी। इत्थे भी आपां की है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर चाहिए ते डी वाई बाय डी एक्स चाहिए। पहला आप इसका क्या डेरीवेटिव करते हैं, आप लिख दें इत्थे
डिफरेंशिएट टू विद रिस्पैक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आप इसमें जो विद रिस्पैक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करांगे तो अपने को क्या आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू समेशन तो चेंज होएगा नहीं क्योंकि इसका काम की है जोड़ना सीरीज में। ए एन एक कॉन्सटेंट है, एक्स की पावर एन का क्या आएगा एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। हुण एक गल ध्यान दिओ, जेकर तुहानू याद होए जे तुसी पार्ट 1 वीडियो का चंगी तरह देखा होएगा, जेकर उसनू नोट करिया तो तुसी अपनी नोटबुक के उपर उस पेज नू खोलो जिथे आपां की है फस्ट एग्जाम्पल की सी पिछली वीडियो के विच। तो उत्थे मैं की कीता सी, तुहानू मैं कहा सी डी वाई बाई डी एक्स ते की है जीरो, इत्थे आपां जदों पुट करते हैं तो एक्स की पावर माइनस वन बनती है, एक्स बटे च जाता है तो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो की बनता है बटे दे विच जीरो बन जाता है क्योंकि एक्स की पावर जो माइनस वन बनेगी तो एक्स बटे च चला जाएगा तो बटे च जाएगा तो उत्थे आप जो जीरो भरांगे तो की है इनफिनिटी बन जाएगा। फिर आप की कीता सी एन नू सीरीज़ नू वन तो शुरू किया सी, फस्ट जो जीरो वाली टर्म से आप हटा दी सी, फिर उसनू लिया सी एन इज इक्वल टू एन प्लस वन पुट करके। ठीक है, तो जेकर तुहानू चीज़ याद होएगी तो इत्थे आपां वो स्टैप डी वाई बाई डी एक्स के लिए नहीं करांगे। ठीक है, तो वो क्यों नहीं करांगे, तुसी एक गल ध्यान नाल देखो स्टेटमेंट दे विच, अपनी स्टेटमेंट दे विच डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर है, डी वाई बाई डी एक्स नहीं है। मतलब पी ऑफ एक्स जीरो सी जिंदे करके जीरो नाल डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई होया तो भी जीरो हो गया। ठीक है, जो अपने को सीरीज़ दे विच डी वाई बाई डी एक्स है ही नहीं, आपां उस दा ओ स्टैप क्यों करिए। ठीक है, फालतू स्टैप आपां नहीं करांगे। ਆਪਾਂ ਨੂੰ डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर चाहिए है क्योंकि आप डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर जो है उसनू वन दे विच पुट करना है तो वाई नू पुट करना है, वाई आप लैट कर चुके हैं तो हुण आपां नू सिर्फ की चाहिए है डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर। तां करके डी वाई बाई डी एक्स का वो वाला स्टैप आपां नहीं करांगे जिथे आपां की है इसकी पावर नू चेंज करांगे या एन नू आपां जिहड़ा पुट करदे हां। उम्मीद करदा गल समझ लग गई होएगी, क्योंकि जेकर गल नू रट्टा मारिया होएगा ना तो फिर आप वो स्टैप भी करांगे तो टाइम नहीं वेस्ट करना आप बिल्कुल भी। ठीक है, तो आप सीधा की करते हैं एक बारी होर अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पैक्ट टू एक्स, इसमें आप दोबारा डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पैक्ट टू एक्स। तो जो दोबारा डिफरेंशिएट करांगे तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू जीरो तो इनफिनिटी ए एन एज इट इज़ एन भी एज इट इज़ एक्स की पावर एन माइनस वन का डेरीवेटिव करांगे तो की होएगा एन माइनस वन यानी कि पावर नीचे आ जाएगी तो पावर दे विचों एक घट जाएगा होर एन माइनस वन सी हुण इत्थे एन माइनस टू हो जाएगा। ठीक है, हुण देखो इत्थे हुण वो वाला स्टैप जरूर करना पेगा आपां नूं क्योंकि देखो अपनी जो सीरीज़ है उस दे विच जदों आपां इन्हां नूं इत्थे जीरो पुट करांगे तो एक्स की पावर माइनस टू बनेगी, फिर क्या होएगा एक्स बटे दे विच चला जाएगा तो आपां की क्या सी कि एट एक्स इज इक्वल टू जीरो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जिस्टिंग ऑर्डीनरी पॉइंट दे रही है, बट इत्थे की आपां जदों एक्स नूं जीरो पुट करदे आ तो की इनफिनिटी बन रहा एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो इहदा मतलब एट एक्स इज इक्वल टू सॉरी एट एन इज इक्वल टू जीरो एंड एन इज इक्वल टू वन, क्योंकि एक्स नूं जदों आपां पावर दे विच नैगेटिव देवांगे तो उदों नीचे आ जाएगा है ना। तो आप जो जीरो पुट कराया है तो उदों की एक्स की पावर माइनस टू है, तो जो आप एक्स की पावर एन नू वन पुट करांगे तो वन माइनस टू वो भी की होंगी है एक्स की पावर माइनस वन बनेगी तो वो भी एक्स नीचे चला जाएगा, तो फिर भी आप जो एक्स नू जीरो पुट करांगे तो की है इनफिनिटी बनेगा। तो इस करके आपू पहलियां दो टर्मां की ने तंग कर रही ने, मतलब वो इनफिनिटी दे रही ने। ठीक है, तो इस करके आप पहलियां दो टर्मां की है हटा देंगे, इसनों भी मैं की इरेज कर दिंदा हाँ। तो फस्ट टू टर्म्स जो हैं वो आप की करांगे हटा देंगे सीरीज़ के विचों। हाँ जी, तो फस्ट टू टर्म्स को हटावांगे तो डी स्केयर वाई अपॉन डी एक्स स्केयर एज इट इज़ इक्वल टू समेशन एन आप सीरीज़ कितों शुरू कर देंगे दो तो। ठीक है, क्योंकि जो आप सीरीज़ दो तो शुरू करांगे एन टू पुट करांगे तो एक्स की पावर टू माइनस टू जीरो हो जाएगी तो वो इनफिनिटी नहीं बनता। ठीक है, इस करके हाँ जी। तो हुण आपां ये भी गल ध्यान रखनी है कि आप अपनी मर्जी नाल दो टर्म्स को एक सीरीज़ के विचों हटा रहे हाँ। ठीक है, मान लो आ सीरीज़ इस तरह चल रही है,
ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਟਰਮਾਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ? ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ। ਪੁੱਟ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪੁੱਟ n is equal to n plus 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ n plus 2 is equal to 2 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ a n plus 2, n ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ n plus 2 ਕਰ ਦਿਓ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ n plus 2। ਹੁਣ n plus 2 minus 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ, ਸੌਰੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਮੈਂ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ, n ਮਾਈਨਸ 1 ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ n ਮਾਈਨਸ 2 ਲਿਖਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਮਿਸਟੇਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? n plus 2, -1 ਦਾ ਤਾਂ -1 ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 'ਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? n plus 2 minus 2, ਜਿੱਥੇ ਵੀ n ਸੀ ਉੱਥੇ n plus 2 ਕਰਤਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? d ਸਕੁਏਅਰ y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲਾਈਡ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੀ ਟਰਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ d ਸਕੁਏਅਰ y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਮੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਹਾਂਜੀ d ਸਕੁਏਅਰ y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? 2 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 2 ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਤਾਂ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮੇਸ਼ਨ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਵਰ ਇਨਫਿਨਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਰਮਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਫਿਰ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਐਡ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਮੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇਗਾ? 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? 2 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਟਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਸੀ, 2 ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ n ਨੂੰ n plus 2 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟਰਮਾਂ ਆਪਾਂ ਹਟਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ an ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? an plus 2। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ n plus 2 minus 1 ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? n plus 1। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ? n plus 2, n plus 2 ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ? x ਦੀ ਪਾਵਰ n। x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ n plus 2 minus 2 ਸੀ, plus 2 ਨਾਲ minus 2 ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ d ਸਕੁਏਅਰ y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, y ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਫਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਨੰਬਰ 1, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ d ਸਕੁਏਅਰ y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀ? ਪਲੱਸ 2y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0, ਪਲੱਸ 2y ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। 1 ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ d ਸਕੁਏਅਰ y ਅਪੋਨ dx ਸਕੁਏਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਨਿਕਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an plus 2 n plus 1 n plus 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ 2 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਮੇਸ਼ਨ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ, ਇਹ ਰਹੀ ਆਪਣੀ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਆਪਣੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਨਾ ਇਸ ਜੋ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਟ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਵੇਰੀਏਬਲ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਆ ਜਾਏਗੀ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an plus 2 n plus 1 n plus 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼, ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਮਾਈਨਸ, ਦੇਖੋ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਐਕਸ ਸਕੁਏਅਰ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an plus 2 n plus 1 n plus 2
x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਸੀ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੀ ਹੈ ਐਡ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਪਲੱਸ ਦਾ 2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਕਿ 2 ਵੀ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ x ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਸਮੇਸ਼ਨ n 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਨੰਬਰ 1 ਜੋ ਆਪਣੀ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਲਾਸਟ ਜੋ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਿਰਫ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ। ਕੰਪੇਅਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਲਿਖਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਖਣਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮੇਸ਼ਨ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an plus 2 n plus 1 n plus 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ n x ਦੀ ਪਾਵਰ n। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਾਈਨਸ ਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ n plus 2 ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਸ, ਮਾਈਨਸ ਸਮੇਸ਼ਨ n 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an plus 2 n plus 1 n plus 2। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ n plus 2 ਕਿਉਂਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਇਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪਲੱਸ ਦਾ 2y 2 ਇੰਟੂ y ਸੀ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ an x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ 1 ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ, x ਦੀਆਂ ਜੋ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਬਾਏ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟਸ of various powers of x। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਨੂੰ। ਜਦੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ n ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ 0। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ a 0 plus 2 a2 0 plus 1 1 0 plus 2 2। ਠੀਕ ਹੈ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ 0 ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਬਟ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਹੈ ਤੇ n ਦੀ ਲੀਸਟ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੈ। ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ n ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੀਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ n ਦਾ, ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਹੈ 0 plus 2 ਯਾਨੀ ਕਿ x ਸਕੁਅਰ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦਾ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 0 ਇੱਥੇ 0 ਆਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਲਾ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 0 ਪਲੱਸ 2 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼। ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ n ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 0। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ a ਨੋਟ, n ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਹਮਣੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, 0 ਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ 0। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ a2 ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2a2। ਠੀਕ ਹੈ, 2a2 ਪਲੱਸ 2a ਨੋਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ 2 ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ a2 ਵੀ ਕੈਂਸਲ a2 ਵੀ ਕੈਂਸਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ a ਨੋਟ। a2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ ਦਾ a ਨੋਟ। ਹੁਣ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਨਾ ਪ੍ਰੀਸਾਈਜ਼ ਸਪੈਕਟਰਮ, ਤਾਂ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ
z ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੁਛ ਲੈਟ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ z ਨੂੰ ਲੈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ dy/dx ਨਹੀਂ dy/dz ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ n ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ n ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ 1 + 2 3 1 + 1 2 1 + 2 3 ਓਕੇ, ਮਾਈਨਸ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ n ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ 0 ਆ ਜਾਏਗਾ, ਪਲੱਸ 2 constant ਬਾਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਯਾਨੀ ਕਿ a1 ਬਰਾਬਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਧਰ ਤਾਂ ਕੋਈ x ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ 0 ਹੀ ਆਏਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈ ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਵੀ 2 ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ 0 ਹੈ। 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਉਧਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇੱਥੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਇੱਥੋਂ 2 ਕਾਮਨ ਲੈ ਲਈਏ, ਉਹਨੂੰ 0 ਦੇ ਬੱਟੇ 'ਚ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਧਰ 0 ਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ 3a3 ਪਲੱਸ ਦਾ a1 = 0। ਇਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਲ a3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ -a1/3। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕਸ ਸਕੇਅਰ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ 2 ਆਹ ਵਾਲੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ n ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ x ਦੀ ਪਾਵਰ n ਹੈ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਓਕੇ, n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ a2 + 2 4। ਠੀਕ ਹੈ, n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ 2 + 1 3 2 + 2 4। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 0 ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ ਆਪਾਂ 2 ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, n 0 ਤੋਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੱਕ ਟਰਮਸ ਨੇ, n ਦੇ ਕੋਲ 0 ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਸੌਰੀ n ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ n ਨੂੰ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ n ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, a0 + 2 a2 0 + 1 1 0 + 2 2 ਓਕੇ, ਪਲੱਸ 2 ਕੌਨਸਟੈਂਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, x ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ 2 ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 ਮਤਲਬ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ n ਨੂੰ 2 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿ a2 ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ 0। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ 2a2 1 ਤਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਟਰਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ 2a2, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਇਹ 2a2 ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 12a4 = 0 ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ a4 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 0। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ x³ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। x³ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ n ਨੂੰ 3 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 2 3 4 a5। ਠੀਕ ਹੈ, 1 2 3 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 4 ਆਏਗਾ, 2 3 4 ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਏਗਾ 5 ਆਏਗਾ। ਓਕੇ, ਮਾਈਨਸ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ 0 0 ਸੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਲਾਂਗੇ, ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ n ਨੂੰ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, 1 + 2 x ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ n ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, a 1 + 2 a3 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਹੁਣ n ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ 1 ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1 + 1 2 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 + 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 3। ਓਕੇ, 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਆ ਗਿਆ। ਓਕੇ, ਹੁਣ 2 ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, a2 2a1 2a2 2a3। ਓਕੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ 0 ਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, 2 × 2 4, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਾਮਨ ਹੈ। 2 ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਕੇ 0 ਦੇ ਬੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, 2 ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਗਿਆ
2 क्योंकि 2 इंटू 2 4। ओके हुण अपने कोल की बच गया 5 इंटू 2 10 10A5 इत्थे की हुण माइनस दा 3A3 है माइनस दा 3A3 है इत्थे कला A3 है हुण -3 +1 करोगे तो -2 बचेगा तो आप इत्थे की लिखांगे -2A3। ओके ये प्लस दा 1A3 सी ये माइनस दे 3A3 सी तां करके की है -3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 1 ਜੋੜਾਂਗੇ ਤਾਂ -2 ਆਏਗਾ। ਓਕੇ ਤਾਂ -2A3 करता सामने अपने कोल 0 है हुण फिर इत्थे देखो इहदे कोल भी 2 है इहदे कोल भी 2 है 2 ਨੂੰ कॉमन ਕੱਢ लिया इत्थे भी 2 कॉमन ਕੱਢ लिया कितना बच गया 5। ठीक है तो अपने कोल की आ गया A5 की वैल्यू A5 इज इक्वल टू अब माइनस का A3 सी उधर 0 सी माइनस का A3 सी उधर जाके प्लस का A3 A5 ਦੇ ਨਾਲ 5 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ 5 ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ A5 ਦੀ ਹੋਰ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ A3 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ -A1/3 ਆਪਾਂ -A1 3 × 5 ओके तो A5 ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -A1/3 × 5 यानी कि 15 ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ x ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ ਦੇਖੋ A0 A1 एक होर वैल्यू निकाल लेंगे बस एक लास्ट वन। ओके x की पावर 4 ये लास्ट होएगी तो देखो A6 4 तो बाद इत्थे की आएगा 5 आएगा 5 तो बाद इत्थे की आएगा 6 आएगा माइनस A3 तो बाद की आएगा A4 आएगा। ठीक है 2 तो बाद की आएगा 3 आएगा 3 तो बाद की आएगा 4 आएगा। ओके प्लस 2A4 इज इक्वल टू 0 बट इत्थे एक गल तुसीं ध्यान दिओ इसमें की हो गया हाँ जी सामने अपने को 0 है बट इत्थे देखो आप A4 की वैल्यू निकाल चुके हैं वो की आई सी 0 यानी कि जिथे जिथे A4 है उत्थे आप 0 पुट कर सकते हैं 5 × 6 यानी कि 30 × A6 A4 की जगह पर 0 यानी कि सारी टर्म 0 माइनस का 0 प्लस का ये भी सारा 0 बराबर 0 यानी कि A6 की वैल्यू अपने को 0 आ गई। ओके बट अपन की है एक होर टर्म चाहिए सी इस करके A5 को कंपेयर कर ही लेंगे हाँ। ठीक है कोई गल नहीं तो A5 में जो कंपेयर करांगे तो सिंपल अपन हुण तां सीरीज़ बन चुकी है A7 6। ठीक है इत्थे की आएगा 7 माइनस हुण देखो A4 है A5 4 5 प्लस 2A5 इज इक्वल टू 0। ओके चैक कर लेना तुसी चाहे इस दे विच पुट करके तो सीरीज़ के अकॉर्डिंग ही लिखना कोई मिसटेक ना करना। ओके जिवें 6 तो बाद 7 5 तो बाद 6 6 तो बाद 7 पहले देख लेना कि इस अकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है फिर देखो 2 3 4 फिर 5 आनी सी 1 2 3 सी फिर 4 आना सी 2 3 4 सी 5 आना सी 2 तो बाहर कॉन्सटेंट मल्टीप्लाई हो रहा है A 2 3 4 इत्थे 5 आना सी सिंपल। ओके हुण देखो इन्हां दे विच भी 2 कॉमन है इत्थे 2 हैगा इत्थे 2 हैगा इत्थे भी 2 है। ठीक है तो 2 कॉमन कट के मैं उधर डिवाइड करांगा तो 0 बन जाएगा फिर इत्थे 3 बच गया 6 की जगह ते 4 की जगह ते 2 बच गया। हुण देखो 7 × 3 21 A7 उस तो बाद देखो 5 × 2 10 -10 A5 इत्थे प्लस दा A5 इज इक्वल टू 0। हुण देखो 21 A7 ये कितना बच गया माइनस का 9 A5 इज इक्वल टू 0। हुण इस दे विच देखो 3 कॉमन है। ठीक है 7 × 3 21 3 × 3 9 3 नूं कॉमन कट के उधर डिवाइड करता। ओके हुण A7 की वैल्यू की आ गई -3A5/7 डिवाइड चला जाएगा बाय 7 सॉरी माइनस का इधर से उधर जाके प्लस का होएगा। ओके माइनस का 3A5 सी उधर जाके प्लस का 3A5 हो गया 7 इधर A7 नाल मल्टीप्लाई सी तो 7 उधर जाके डिवाइड हो गया सिंपल गल। ठीक है सीधी बात। ओके हुण देखो A5 की वैल्यू अपने कोल है कितनी आप पुट कर देंगे A5 की अपने कोल वैल्यू है
हाँ जी, तो A5 की अपने को वैल्यू है -A1। पहला इसनों ही लिख लेंगे 3/7 A5 की वैल्यू पुट कर रहे हैं आप, ठीक है। ए वाला जो A5 है ना, इसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो A5 की वैल्यू है कितनी है, -A1/3 × 5। हुण देखो 3 उपर है 3 नीचे कट्टे गए, यानी कि मैं इत्थे लिख दिंदा A7 की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, -A1 बटे दे विच 7 × 5 35। ओके, तो ये A7 की वैल्यू आ गई। हुण आपां कि सिंपल इसनों सीरीज़ दे विच पार दिंदे हाँ, तो तुहानूं पता होएगा कि आपां सोल्यूशन लैट करिया सी y इज़ इक्वल टू आ वाली सारी सीरीज़, ठीक है। ए वाला आपां की है सोल्यूशन लैट करिया सी, तो इस दे विच ही आपां सोल्यूशन दे विच आंसर नूं फिल करांगे। ओके, हाँ जी, तो आपां की लैट करिया सी सोल्यूशन की है y इज़ इक्वल टू समेशन n0 तो इनफिनिटी AN(x)n। ओके, तो इसनों आपां जदों ओपन करांगे तो अपने कोल की आएगा A0 + A1x + A2x², ठीक है। जिथे जिथे n सी उत्थे पहले 0 पुट किया, A0 x की पावर 0 1 होंदा है, ठीक है। तो फिर A1 x की पावर 1, A2 x की पावर 2, फिर A3 x की पावर 3, A4 x की पावर 4, A5 x की पावर 5, A6 x की पावर 6, सॉरी मैं 7 लिखा, प्लस A7 x की पावर 7। A7 x की पावर 7 प्लस अप टू सो ऑन। हाँ जी, तो आप जो वैल्यूज़ निकालिया सी उन्होंने इस की आ फिल करांगे, ठीक है। A0 का तो A0 रहेगा, A1x का भी A1x ही रहेगा, ठीक है। हुण देखो पहला A2 की वैल्यू निकाली सी कितनी, -A0, A2 की वैल्यू -A0 निकाली सी आपने, ठीक है। A2 की वैल्यू -A0 तो आप इत्थे फिल कर देंगे हाँ, -A0x²। फिर A3 है, A3 की वैल्यू चेक करते हैं तो देखो A3 की वैल्यू आप निकाली सी -A1/3, ठीक है। हाईलाइटर थोड़ा डार्क हो गया, हाँ। तो A3 की वैल्यू निकाली सी -A1/3, तो इसनों भी आप पुट कर देंगे हाँ, -A1/3 x की पावर 3। ओके, हुण देखो A सॉरी x की पावर 4 ते A4, ठीक है। A4 की वैल्यू तो 0 सी, ठीक है। तो A4 की जगह तो आपको सिंपल 0 लिखना पएगा, 0। हुण A5 की गल करिए तो A5 आप निकालिया सी, तो A5 देखो कि आया सी अपने कोल -A1 ते बटे दे विच 3 × 5, 3 × 5 यानी कि 15। तो आप इत्थे लिख दिंदे आ प्लस सॉरी माइनस ताई सी, ठीक है, -A1/15, ठीक है, नाल x की पावर 5। हुण A6 तुहानूं याद होएगा फिर 0 आया सी, तो A7 की वैल्यू की आई सी वो देख लेंगे आपां, ठीक है। A6 की वैल्यू 0 आई सी, A7 की वैल्यू की आई सी -A1/35। देखो ये ना वैल्यूज़ पुट करना बड़ा ध्यान नाल होना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर की है हमेशा जिमें देखो आप बुक्स बनाते ना जी वैल्यू मेन होंगी जिंदी अपन जरूरत होंगी उन्होंने बुक्स के इस करके देखते हैं कि एग्जामिनर सारी कैलकुलेशन चैक करने के बजाय की है मेन पॉइंट देख ले कि हाँ A2 की वैल्यू सही निकाली है, A3 की, A4 की, A5, A6, A7, ठीक है। फिर वो सीधा आंसर तो जाएगा कि इसका आंसर बिल्कुल मैच हो रहा सही है,
ओके सही है। जेकर आप की है इस तरह हाईलाइट ना करांगे या ध्यान नाल नहीं लिखांगे ना, जे मान लो एक भी मिसटेक है तो की है क्रॉस कर सकता है, वो सोच गया कि इस स्टैप के मिसटेक होगी तो सारा क्वेश्चन ही गलत होएगा। ओके, ता करके इन्हां वैल्यूज़ नूं थोड़ा ध्यान नाल फिल करना तो जरूर उन्हां नूं की करना इस तरह बॉक्स दे विच कर देना। ओके हाँ जी, तो हुण देखो A7 की वैल्यू अपने को आई सी -A1/35, तो आप लिख देंगे -A1/35 x की पावर 7, बाकी सो ऑन मतलब चलता रहेगा। ओके हाँ जी, हुण y = देखो A नोट वाले सिर्फ दो ही हैं, A नोट वाले दो ही हैं, बाकी सारे A1 वाले हैं या फिर 0। तो आप A नोट नूं कॉमन लैंदे आ, इत्थों A नोट नूं कॉमन लिया तो की बच गया 1, माइनस इत्थों A नोट नूं कॉमन लिया तो -x²। ओके हुण देखो A1 प्लस का साइन क्यों, क्योंकि इत्थे फस्ट जो A1 वाला है वो प्लस का है, तो A1 कॉमन लिया प्लस का x, इत्थे की बच गया x, फिर इत्थों A1 कॉमन लिया -1/3x³, ठीक है, फिर -1/15 x की पावर 5, A1 इत्थों भी कॉमन लिया, फिर माइनस इत्थों A1 कॉमन लवांगे तो -1/35 x की पावर 7 माइनस सो ऑन, ठीक है, तो ये चलता रहेगा। -1/35 x की पावर 7 फिर माइनस ए चलता रहे। ओके, तो ये अपना की सी आंसर। ओके मैं आपके सिग्नेचर करने लग गया सी आंसर। उम्मीद करता हाँ क्वेश्चन समझ आया होएगा, एक बार रिपीट जरूर कर देना ऑर्डिनरी पॉइंट वाला ये वाला क्वेश्चन। तो देखो पहला अपने को जो स्टेटमेंट सी कि 1 - x² × d²y/dx² प्लस 2y × 0, ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन सी, इसका सीरीज़ के विच आपां सोल्यूशन निकालना सी। ठीक है, पहले आप दोनों की किया डिवाइड करता 1 - x नाल, ठीक है, क्यों, क्योंकि अपने को जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके d²y/dx² का कोफिशेंट की है 1 है। ठीक है, तो d²y/dx² का कोफिशेंट आप पहले किया 1 बना लिया, अब इत्थे की किया आ 1 - x² सी ना, इसनूं हटा दिता, यानी कि डिवाइड करता 1 - x² नाल, तां d²y/dx² का कोफिशेंट 1 बन गया, 2 के बटे दे विच 1 - x² आ गया इंटू y = 0। फिर px देखा, px की हुंदा है जिहड़ा dy/dx का कोफिशेंट हुंदा है, तो dy/dx है ही नहीं सी, इहदा मतलब px की है 0 है। इस करके ਆਪਾਂ बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ Q(x) ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ y ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਕੀ ਹੈ 2/1 - x², ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਇੱਕ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਇਆ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿੰਦੇ ਤੇ @x = 0 ਤੇ ਕਿ @x = 0 Qx ਤੇ Px ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, Px ਐਂਡ Qx ਬੋਥ ਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟ, ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਦੇਅਰਫੋਰ ਜੇਕਰ Px ਤੇ Qx दोनों x = 0 ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ x = 0 एक एन ऑर्डिनरी पॉइंट है। ठीक है, एक ऑर्डिनरी पॉइंट है किंदा डिफरेंशियल इक्वेशन 1 का। फिर आप किया आप एक सोल्यूशन लैट कर लिया कि y = समेशन n = 0 तो इनफिनिटी (a(n)x की पावर n जो है एक ही है साडा एक सोल्यूशन होएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो सोल्यूशन आपां नूं उन्होंने की कहा सी सोल्व इन सीरीज़, तो अपना सोल्यूशन भी एक सीरीज़ के होगा, ता करके आप समेशन (a(n)x की पावर n एक सीरीज़ के सोल्यूशन लैट किया, इनू आप नंबर 2 कह दिता। फिर आप इनू की डिफरेंशिएट कर दिता, पहले dy/dx की वैल्यू निकाली, बाद d²y/dx² की वैल्यू निकाली जी कि ए वाली सी। ठीक है, ये वैल्यू निकालन तो बाद आप क्योंकि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर निकाल रहे हैं, 1 का आंसर निकाल रहे हैं, तो इन्हों की वैल्यूज़ पहला 1 के पुट की, यानी कि अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को एक सीरीज़ की फॉर्म के चेंज कर लिया। हुण देखो ये सारी अपनी जो 1 सी उस वैल्यू पुट की तो की है एक सीरीज़ बन गई। ओके, फिर आप किया जो अपनी ये सीरीज़ सी इस एक्स दियाँ वैल्यूज़ को कंपेयर किया, मतलब अपना ओवरऑल की है डिफरेंशियल इक्वेशन को सीरीज़ के बदलन तो बाद आप इसका सोल्यूशन फाइंड करना शुरू कर दिता।
ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਕਸ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਾਵਰਸ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਬਾਈ ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ ਵੇਰੀਅਸ ਪਾਵਰ ਆਫ ਐਕਸ। ठीक है, तो सारिया पावर में आप की है कंपेयर करना शुरू करता। फिर A2 A3 A4 A5 A6 तो A7 की वैल्यू आ गई। जो ये वैल्यूस आ गई फिर आप क्योंकि y नू अपना की है सोल्यूशन मन्निया सी, y जो सीरीज़ सी उसने आप क्या अपना सोल्यूशन मन्निया सी, तो फिर आप उस दे विच अपनियां A0 A1 नू छड्ड के जिहड़ियां वैल्यूस आप निकालियां सी ना A2 A3 A4 A5 A6 वो वाली वैल्यूस आप की कीता इस दे विच पुट करतियां। तो जो पुट कर दी तो अपना फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, फाइनल आंसर आ गया। तो इस तरीके नाल की है सिर्फ इस क्वेश्चन नू सोल्व करना सी ते एक काम करना जो लास्ट के क्वेश्चन नू सोल्व कर लेना उन्होंने भी की है बुक्स दे विच कवर कर देना ताकि एग्जामिनर नू पता लग जाए कि ये साडा फाइनल आंसर है। ओके, तो अपना की है इस तरीके नाल एग्जाम्पल 3 कंप्लीट होंदी है। दा एक होर क्वेश्चन है जिहड़ा कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑर्डिनरी पॉइंट के रिलेटेड जो है एक होर क्वेश्चन है जिहड़ा जरूरी है वो मैं तुहानूं इत्थे लिख के दिंदा हाँ, तुसीं ट्राई करना, जेकर ना होएगा तो मैनूं दस देना, फिर आप उसकी भी की है वीडियो बना देंगे। एक एग्जाम्पल 2 मैं तुहानूं दे चुका तो एक होर एग्जाम्पल देन लग्या। असल च ना बुक दे विच ही एक सीरीज़ वाइज बहुत अच्छे क्वेश्चन दिते हुए हैं, तो आपां नूं ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आएगी। जिस तरीके नाल क्वेश्चन हैं उस तरीके नाल अपना की है लैवल बढ़ता जाएगा डिफिकल्टी का क्वेश्चन का। हुण देखो जिहड़ा क्वेश्चन है वो है एग्जाम्पल ही है 4th, ठीक है, बुक दे विच। तां एग्जाम्पल की है सोल्व इन पावर सीरीज़ of x y double dash d square y upon dx square plus x square into y is equal to 1 plus x square। तो ये वाली की है डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2009 ते 2016। ओके, तो देखो इस दे विच की होएगा, पहला आपां की है तुहानूं याद होएगा तो आपां कंपेयर करने हाँ तो पी एक्स तो क्यू एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मेन पी एक्स तो क्यू एक्स की वैल्यू निकालते हाँ, तो सामने आपां की है स्टैंडर्ड फॉर्म के सामने जीरो रखते हैं। इत्थे सामने जीरो नहीं हैगा, इत्थे एक सीरीज़ है छोटी जी 1 plus x स्क्वेयर। बट देखो इस दे नाल ना ही तो dy by dx है, ना ही y है, ना ही d स्क्वेयर y upon dx स्क्वेयर है, यानी कि सीरीज़ के हिसाब नाल की है एक तरीके का कॉन्सटेंट है। हालांकि इस दे विच x एक वेरीएबल है, बट आप जो स्टैंडर्ड फॉर्म नाल कंपेयर करते हैं ना उस दे मुकाबले की है एक कॉन्सटेंट है। क्यों? क्योंकि आपको मेन कंपेयर करने नाल पी एक्स ते क्यू एक्स चाहिदा हुंदा है। ठीक है, तो आप सिंपल की करांगे x इज इक्वल टू 0 ते ही चैक करांगे। तो अपना पी एक्स ते क्यू एक्स की हुंदा है, पी एक्स हुंदा है जिहड़ा कि कोफिशिएंट है dy by dx का। ठीक है, तो क्यू एक्स की हुंदा है कोफिशिएंट हुंदा है y का, तो सामने की हुंदा है d स्क्वेयर y अपॉन dx स्क्वेयर। ठीक है, तो ये अपनी की है स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अपन मेन पी एक्स ते क्यू एक्स चैक करना होंदा, सामने की है उस दे नाल अपना ज़्यादा इत्थों तक कोई लिंक नहीं, इस सम दे विच ऑर्डिनरी दे विच ज़्यादा मतलब दिक्कत नहीं है। तो आप सीधा ही इत्थे कंपेयर लिखने की जरूरत नहीं हैगी, इन्ना झंझट दे विच नहीं पैना, तुसीं सीधा लिखना है कि पी एक्स साडा की है डिफरेंशियल इक्वेशन दे विच वो है अपना 0, क्योंकि इत्थे डी वाई बाई डी एक्स तो है ही नहीं। तो क्यू एक्स की है एक्स स्क्वेयर, तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 तुसीं चैक करोगे, जेकर एग्जिस्ट करता है दिख ही रहा मतलब एग्जिस्ट करेगा, तो अपना एक ही है एन ऑर्डिनरी पॉइंट। ओके, तो एक ही है ऑर्डिनरी पॉइंट। उस तो बाद वाला प्रोसैस तो तुहानूं पता ही है। बस एक गल याद रखना, जो वैल्यूज पुट करोगे वाई दे विच, वाई तुसीं सोल्यूशन लैट करोगे है ना, तो तुसीं की है डेरीवेटिव करोगे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर फाइंड करोगे तो इस दे विच पुट करोगे, तो इत्थे डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू पुट करना, तो इत्थे वाई की पुट करना। उस तो बाद जो एक्स दी वैल्यूज नूं तुसीं कंपेयर करना है, याद रखना एक्स की पावर 0 नूं आपां जो कंपेयर करांगे ना, अगे तो आपां की करदे हुंदे सी A1 माइनस A0 इज इक्वल टू 0 लैट कर रहे हैं आप, इस तरह का होवे कुछ A1 माइनस A0 सामने 0 रखते सी, इस बार 0 नहीं आएगा, इस बार x की पावर 0 का कोफिशिएंट है 1,
ਹੁਣ 1 ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ 1 ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ 0 ਨਹੀਂ 1 ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ ਇੱਥੇ, ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ x ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਹੈ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ a2 a1 ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ 1 ਰੱਖੋਗੇ। ਫਿਰ x ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ यानी कि a3 a2 सामने की है 1 रखोगे क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1। फिर जो तुसी x क्यूब ते आओगे, ठीक है, जो x की है क्यूब ते आओगे उसनों कंपेयर करोगे, मान लो वो होगा x4 x3 मान लो लेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उदों सामने की है 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इतने x0 x1 तो x2 का ही की है कोफिशिएंट है अपने को 1, पर x3 का तो 0 है, तो इस करके आप इस तरह लिख सकते हैं 0x3, ठीक है, ता करके फिर 0 आएगी। तो ये गल याद रखना, कंपेयर करने वेले तुहानू की है ध्यान रखना पएगा, मिसटेक ना करना। ओके, तो ये तुहानू मैं दस चुका। तो ये तुहाडी की है एग्जाम्पल है, तुसी अपने आप करनी है। जेकर कोई डाउट होए तो तुसी प्लीज़ पूछ सकते हो कमेंट दे विच, ते कमेंट दे विच जरूर दसना समझ लगी है या नहीं, या कोई दिक्कत होए, मतलब वॉइस नहीं आ रही होए, या फिर स्लाइड ते कुछ दिक्कत होए, मतलब स्लाइड का तो हो रहा, पता नहीं की दिक्कत होगी इसनों पावर पॉइंट में, ये मैं देख लाँगा जो वारी वारी स्लाइड अपने आप कर दिंदा है। तो तुसी जरूर दसना कि वीडियो समझ लगी या नहीं लगी, या क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, है ना, तो दसना अच्छी लगी। जेकर अच्छी लगी हो तो नाइस वीडियो वगैरह मतलब कमेंट लिख देना, ताकि मैंने भी पता लगे कि मैं ये जो मेहनत कर रहा उसका की है बेनीफिट हो रहा है या नहीं। तो उम्मीद करता तुहानू समझ लग गई होगी। मैं ना स्टैप जरूर याद रखना, क्योंकि इन्हें स्टैप वाइज की है नंबर मिलने होंगे हैं, ठीक है। 3 मार्क्स सॉरी 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस के 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैं आप जो दिता सी काफ़ी साल पहला, तो 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया से उदों, ठीक है। तो तुसीं ये जरूर ध्यान रखना। तो ये चैप्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਆਏਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੋ ਮੈਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਲਗਭਗ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। तो जेकर ये दो एग्जाम्पल्स तुहाडे कोल, एक एग्जाम्पल नंबर 2 तो एक एग्जाम्पल नंबर 4, जेकर ना होए तो कमेंट के दस देना, उसका भी सोल्यूशन बना के मैं अपलोड कर देना। ओके।